Question number 20, locomotion and movement. Movement is one of the significant features of the living beings. Animals and the plants exhibit a wide range of movement. Streaming of protoplasm in the unicellular organisms like amoeba is a simple form of movement. Streaming of protoplasm या cytoplasm जिसको हम साइकोलॉसिस भी कहते हैं, streaming is a simple form of movement. Movement of cilia, flagella, and the tentacles are shown by many organisms. Human beings can move limbs, jaws, eyelids, tongue, etc. Some of the movements result in the change of place or location. Such voluntary movements are called locomotion. Therefore movement movement सिंपली कहते हैं हम जब हम किसी भी बॉडी पार्ट को मूव करें उसको हम मूवमेंट कहते हैं. अब जो मूवमेंट्स हमारी जो लोकेशन चेंज करें उन मूवमेंट्स को कहते हैं हम लोकोमोशन. देयरफॉर ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स, बट ऑल simple. Walking, running, climbing, flying. Walking, running, climbing, flying, swimming are all some forms of the locomotory movements. Locomotory structures need not to be different from those affecting the other types of the movements. Locomotory structures need not to be different from those affecting other types of movements. For example, in paramecium, cilia helps in the movement of the food through the cytopharynx and also in locomotion. Therefore, the structures for locomotion and movement can be same. They need not to be different. They need not to be different. That is, structures for movement and as well as locomotion can be same or different. They need not to be different. For example, in paramecium, cilia helps in the movement of food through cytopharynx and as in locomotion as well. Hydra can use its tentacles for capturing its prey and also use them for locomotion. Similarly, Hydra can use its tentacles for prey. Therefore, tentacles can be used for capturing of prey as well as for locomotion, as well as for locomotion. Similarly, paramecium can use cilia for the movement of the food through the cytopharynx as well as for locomotion. We use limbs for changes in the body postures and locomotion as well. The above observations suggest that movements and the locomotion cannot be studied separately. The two may be linked by stating that all locomotions are movements, but all movements are not locomotions. All locomotions are movements, but all movements are not locomotions. All movements are not locomotions. Methods of the locomotion performed by animals vary with their habitats. Methods of locomotion. किस तरीके से एक organism locomotion दिखाएगा? It depends on their habitats and the demand of the situation. It depends on their habitats and the demand of the situation. उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ डिमांड है, उस हिसाब से वो locomotion दिखाएंगे differently. Methods of the locomotion performed by the animals vary with their habitats and the demand of the situation. However, locomotion is generally for search of food, shelter, mates, suitable breeding grounds, favorable climatic conditions, or to escape from the enemies or predators, or to escape from the enemy is one of the significant features of the living is one of the significant features of living beings. Animals and the plants be exhibit very wide range of movement. Streaming of protoplasm is a simple form of movement. Is a simple stream of protoplasm is also a movement. What of sea level locomotion? Such voluntary movements are called locomotion. They result in the change the place or location while running. Cilia helps in the movement of the food through the cytopharynx as well as in locomotion in paramecium. Similarly, tentacles in the hydra helps in capturing of prey as well as in locomotion as well. Therefore, all locomotions are movements, but all movements are not locomotions. All locomotions are movements, but all movements are not locomotions. Methods of the locomotion performed by the animals vary with their habitats, and the demand of the situation vary with their habitats and demand of the situation. However, locomotion is generally for the food, search of food, shelter, mates, suitable breeding grounds, favorable climatic conditions to escape the enemies or predators. Types of movements. Cells of the human body exhibit three main types of the movement. Cells of the human body exhibit three main types of movement. Namely amoeboid, ciliary, and the muscular. Cells of the human body exhibit three main types of movements: amoeboid, ciliary, and muscular. Some specialized cells in our body like macrophages, leukocytes in the blood exhibit amoeboid movement. Some specialized cells in our body like macrophages and leukocytes को कहते हैं हम WBCs exhibit amoeboid movement. It is affected by the pseudopodia formed by the streaming of protoplasm as an amoeba. It is affected by the pseudopodia की वजह से amoeboid movement affect होती है. For example, amoeba में जब streaming of cytoplasm होती है उसको भी हम amoeboid movement कहते हैं. वहाँ पे
सीडोपोडिया की वजह से ये मूवमेंट इफेक्टिव होती है. साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन एमोबाइल मूवमेंट. साइटोस्केलेटन फिलामेंट जो होते हैं, साइटोस्केलेटन फिलामेंट जो हमारे सेल में होते हैं, दीज आर प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स, वो भी इन्वॉल्व होते हैं एमोबाइल मूवमेंट में. एमोबाइल मूवमेंट कौन कौन सेल्स दिखाती हैं हमारी बॉडी में? मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स. इसके अलावा एमोबा में जो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म होती है उसको भी हम एमोबाइल मूवमेंट कहते हैं. उसमें एक्स्ट्रा जो स्ट्रक्चर टेक पार्ट करता है एमोबाइल मूवमेंट में, दैट इज सीडोपोडिया. सिमिलरली हमारे सेल में जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट देयर आर प्रोटीनेशियस, वो भी इन्वॉल्व होते हैं एमोबाइल मूवमेंट में, वो भी इन्वॉल्व होते हैं. साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स आर लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन द एमोबाइल मूवमेंट. Ciliary movement, the second movement is the ciliary movement, occurs in most of our internal tubular organs which are lined by the ciliated epithelium. Simple. सीलेरी मूवमेंट ऑकर्स इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं जिनको लाइनिंग होती है सीलेटेड एपिथेलियम्स की, उनमें होती है सीलेरी मूवमेंट्स. लाइक द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ द सीलिया इन द ट्राइकिया में होती है हमारी सीलिया. helps us remove the dust particles and some of the foreign substances inhaled along with the atmospheric air. passage of the ova, therefore जो हमारी ट्राइकिया में सीलिया प्रेजेंट होता है, सीलेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, that helps in the removal of dust, particles and some of the foreign particles. passage of the ova through the female reproductive tract is also facilitated by passage of ova. जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से ओवम पैसेज या फैलोपियन ट्यूब से ओवम पास होता है, वो भी होता है विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मूवमेंट, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब के जो लाइनिंग होती है, इनर वॉल लाइनिंग, वहाँ पे सीलेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, सीलेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है. वो सीलियरी मूवमेंट होती है हमारी बॉडी के उन ट्यूबुलर ऑर्गन्स में जिनमें सीलेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जांपल ट्राइकिया में सीलेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, वहाँ पे सीलिया जो है वो हेल्प करता है रिमूविंग द डस्ट पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ द सीलेरी मूवमेंट. इसी तरह जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रांसफर ऑफ ओम या ट्रांसपोर्ट ऑफ ओम होता है थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, वो इसी सीलियरी मूवमेंट की बदौलत होता है. मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, जॉज, टंग एटसेट्रा रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट. Motion and the other movements by the human beings and majority of the multicellular organisms. Locomotion requires a perfect coordinated activity of muscular, skeletal and the neural system. मस्कुलर मूवमेंट करने के लिए तीन चीज़ें कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं. एक तो मसल्स, दूसरे स्केलेटल दैट इज बोन्स, एंड तीसरा न्यूरल सिस्टम. ये जब तीन चीज़ें कोऑर्डिनेशन में काम करती है तभी हमारी मस्कुलर मूवमेंट होती है. देयरफॉर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द मूवमेंट्स. एमोबाइल मूवमेंट्स हमने पढ़ा, सीलियरी मूवमेंट्स, और उसके बाद द थर्ड वन इज द मस्कुलर मूवमेंट. द थर्ड वन इज मस्कुलर मूवमेंट. मस्कुलर मूवमेंट सिंपली मस्कुलर मूवमेंट करने के लिए हमारी मसल्स, हमारी स्केलेटल बोन्स एंड द न्यूरल सिस्टम टेक पार्ट करते हैं. विच अबाउट द सिंपल. हमारी बॉडी में तीन टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स पाए जाते हैं. द फर्स्ट वन इज एमोबाइड, द सेकंड वन इज सीलेरी एंड द थर्ड वन इज मस्कुलर. एमोबाइड मूवमेंट इज फाउंड इन द मैक्रोफेज एंड द ल्यूकोसाइट. मैक्रोफेज एंड ल्यूकोसाइट. इसके अलावा सीडोपोडिया दैट इज प्रेजेंट इन एमोबा, वो हेल्प करता है इन द दिस दैट इज एमोबाइड मूवमेंट. साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं एमोबाइड मूवमेंट. सीलियरी मूवमेंट सिंपली सीलेटेड एपिथेलियम, जिस ट्यूबुलर ऑर्गन्स के इनर लाइनिंग में सीलेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है वहाँ सीलियरी मूवमेंट होगी. फॉर एग्जांपल ट्राइकिया में सील प्रेजेंट होता है, हेल्प्स इन रिमूविंग द डस्ट पार्टिकल्स. सिमिलरली पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इट इज आल्सो फैसिलिटेटेड बाय द सीलियरी मूवमेंट्स ऑफ द लिम्स. मस्कुलर मूवमेंट करने के लिए मसल्स का टेक पार्ट, स्केलेटल बोन्स का टेक पार्ट, इसलिए न्यूरल सिस्टम का टेक पार्ट होता है. मसल. You have studied in chapter 8 that the cilia and the flagella are the outgrowths of the cell. में पढ़ा हमने सेल में पढ़ा है हमने that cilia and the flagella are the outgrowths of the cell membrane. Flagellar movement helps in the swimming of spermatozoa की जो movement होती है, that is flagellar movement. ओम की जो movement होती है that is ciliary movement. It's very important. Flagellar movement helps in the swimming of spermatozoa, maintenance of water current in the canal system of sponges, and in locomotion of protozoans like euglena. And locomotion, flagellar movement helps in the swimming of swimming of spermatozoa. दूसरी बात है maintaining of the water canal system, जो ट्रांसफर स्पॉन्जोसियल ऑस्टियम स्पॉन्जोसियल में ऑस्टिया स्पॉन्जोसियल और जो वाटर कनाल सिस्टम होता है स्पॉन्ज में, उसमें जो वाटर करंट मूवमेंट होती है दैट ऑकर्स थ्रू द फ्लैगेलर मूवमेंट. एंड थर्ड वन इज द मूवमेंट लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लिना में फ्लैगेला प्रेजेंट होता है. लोकोमोशन ऑफ द प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लिना, ये इन सारों में फ्लैगेलर मूवमेंट होती है. मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल origin. Muscle is a specialized tissue of M for muscle, M for mesoderm.
origin. About 40% to 50% of the body weight of a adult human is contributed by the muscles. They have special properties like excitability, contractibility, extensibility and the elasticity. Excitability का मतलब होता है जब कोई सिग्नल, जब कोई स्टिमुलस आता है किसी भी मसल फाइबर के पास, वो एक्साइट होती है, वो वहाँ पे जनरेट करते हैं एक्शन पोटेंशियल, उसका मतलब होता है एक्साइटेबिलिटी. कंट्रैक्टिबिलिटी, मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं. एक्सटेंसिबिलिटी, मसल्स रिलैक्स करते हैं, एक्सटेंड हो सकते हैं. एंड इलास्टिसिटी, मसल्स आर इलास्टिक, ब्रेक नहीं होते हैं अंडर इनॉर्मस टेंशंस. Muscles have been classified using different criteria, namely location, appearance, and the nature of the regulation of their activities based on the location. Muscles are three ways. ये बहुत आसान है. Skeletal muscles that are closely related with the bones. Visceral muscles that are present on the visceral organs. तीसरे हैं cardiac muscles. Similarly, skeletal muscles को हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं. Therefore, skeletal muscles are voluntary. इसके अलावा skeletal muscles के जो मसल फाइबर्स होते हैं वो सिट्रेटेड होते हैं, इसलिए उनको कहते हैं हम सिट्रिएटेड. दूसरे होते हैं विसरल मसल ऑर्गन्स. जो हमारे विसरल ऑर्गन्स में जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं उनको विसरल मसल्स कहते हैं. वो टोटली इनवॉलंटरी होते हैं और नॉन सेटरेटेड होते हैं, उनमें कोई स्ट्रिप्स नहीं होते हैं. थर्ड मसल इज द कार्डियक मसल. कार्डियक मसल इज स्पेशलाइज्ड मसल प्रेजेंट इन द हार्ट. ये तो पता ही है, कार्डियक मसल इज इनवॉलंटरी, उसको हम नहीं खुद कंट्रोल कर सकते. हार्ट खुद को खुद ही कंट्रैक्टलाइज करता है, दैट इज हार्ट इज मायोजेनिक. लेकिन हार्ट में जो मसल्स होते हैं दैट आर सिट्रेटेड, उनमें स्ट्रिप्स पर पाए जाते हैं. ये भी पढ़ा है पहली चैप्टर में स्ट्रक्चर और एनिमल्स, इसीलिए याद है यहाँ पे ज़्यादा फोकस इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लैशर मूवमेंट. अबाउट 40 to 60% या 40 to 50% जो बॉडी वेट होता है इट इज टोटली ड्यू टू मसल जो होती है. इट इज मेसोडर्मल इन ऑरिजिन. इंपॉर्टेंट है. फ्लैशर मूवमेंट कहाँ कहाँ पाई जाती है, दैट्स इंपॉर्टेंट. स्पर्मेटोजोआ में फ्लैशर मूवमेंट पाई जाती है. वाटर कनाल सिस्टम इन स्पॉन्ज में फ्लैशर मूवमेंट पाई जाती है. इसके अलावा लोकोमोशन जो एग्लिना में होती है, एग्लिना में दैट इज प्रोटोजोन्स में होती है, दैट इज टोटली थ्रू द फ्लैशर मूवमेंट होती है. उसके मसल को क्लासिफिकेशन की हमने लोकेशन की बेसिस में, स्ट्रेट की स्ट्रक्चर की बेसिस पे. Flagellum movement helps in the sweeping of the spermatozoa, maintenance of the water canal system in the sponge, and the locomotion of the protozoans like uglina. Locomotion of the protozoans like uglina. About 40 to 50% of the body weight of the human is contributed muscles. They have excitability, the whole excitability, excitability, contractibility, extensibility, and elasticity. Contractibility, extensibility, and the elastic muscles having location, appearance, and the nature of the regulation. Voluntary location के हिसाब से skeletal muscles are closely associated with the skeletal components of the body. They have striated appearance. They are called striated muscles. As their activities under the voluntary curve, they are called as the voluntary. They are primarily involved in locomotory actions and changes in the body postures. Body postures में जो primarily involved होते हैं ना locomotory, पहली जो हर कोई skeletal muscle involved होती है in the locomotory actions. Visceral muscles are located in the inner walls of the hollow visceral organs of the body like the alimentary canal. Reproductive tract में visceral muscles पाए जाते हैं. They do not exhibit any striation and are smooth in appearance. Hence, they are called smooth muscles or non-striated muscles. Smooth muscles are their activities are not under the voluntary canal and are called as the involuntary muscles. They exist, for example, in the transportation of the food through the digestive tract and the gametes through the genital tract. वहाँ पे पाए जाते हैं visceral muscles. They are involuntary and non-secretory. They are also called as smooth muscles. बहुत आसान. The last one is cardiac muscle. Cardiac muscle तो पता ही है by name. Cardiac means heart. Heart में पाए जाते हैं. Other muscles of the heart are the muscles of the heart. Many cardiac muscles assemble in branching pattern, and for cardiac muscle, based on the appearance, cardiac muscles are striated. They are involuntary and do not control the activities directly. As the nervous system do not control the activities directly नहीं control करता है nervous system. They are striated and involuntary. Let's examine अब skeletal muscle के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में. Very important, अच्छे से पढ़ेंगे. Let's examine a skeletal muscle in detail to understand the structure and mechanism of the contraction. Contraction समझने के लिए हमें पहले structure of skeletal muscle समझना पड़ेगा. Each organized skeletal muscle in our body is made up of muscle bundles or fascicles. Skeletal muscle जो होती है ये bundles, skeletal bundles और fascicles की बनी होती है जो held होती है together with a common collagenous connective tissue that's called as fascia. Each muscle bundle contains a number of muscle fibers. Each muscle fiber, एक muscle fiber जो होती है it is the cell. Actually muscle fiber is the cell. जैसे अपने सेल को अपना सेल मेम्ब्रेन होता है, इसी तरह मसल फाइबर को अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, मसल फाइबर को अपना साइटोप्लाज्म होगा, मसल फाइबर को अपना न्यूक्लियस होगा, मसल फाइबर को अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा. पहले पढ़ेंगे मसल जो स्केलेटल मसल होती हैं वो किसकी बनी हुई. स्केलेटल मसल इज कंपोज्ड ऑफ मसल, उनको हम फैसिकल्स भी कहते हैं. बहुत सारे मसल बंडल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ फैसिया. हर कोई मसल बंडल बनी होती है बहुत सारे मसल फाइबर्स की. फिर हम इसी मसल फाइबर को बाहर निकाल के पढ़ेंगे. मसल फाइबर इज सिंपली सेल. अब हम डिटेल मसल फाइबर को पढ़ेंगे. मसल फाइबर को अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा जिसको सार्कोलीमा कहेंगे. मसल फाइबर को अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा जिसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे. वो जो स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस होता है विच हेल्प्स इन द कंट्रैक्शन लेटर ऑन पढ़ेंगे.
Let's examine the skeletal muscle in detail and understand the structure of the mechanism of the contraction. Each organized skeletal muscle in our body is composed of the muscle bundles or the fascicles held together by a common collagen connective tissue layer called as the fascia. Each muscle bundle consists of the muscle fibers. अब मसल फाइबर पढ़ेंगे. मसल फाइबर इज लाइन, मसल फाइबर ही सेल होती है, ये याद रखना. पहली बात, जब कन्फ्यूजन दूर होगा, मसल फाइबर को हम सेल कहते हैं, सीधे मसल सेल कहेंगे. जिस तरह एक साधारण सेल के पास एक अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इस तरह एक साधारण सेल के पास अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिस तरह एक साधारण सेल के पास अपना न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड, इसी तरह मसल फाइबर्स के पास भी ये सारी चीज़ें होती हैं. ईच मसल फाइबर इज लाइन्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड द सार्कोलीमा enclosing the sarcoplasm which is actually the cytoplasm. Muscle fiber is syncytium, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. Muscle fiber is syncytium, that is multinucleated. Syncytium का मतलब होता है multinucleated. Syncytium is a term used for multinucleated in animals. Similarly, syncytic is a term used for multinucleated in plant cells. Syncytium as the sarcoplasm contain many nuclei. The endoplasmic reticulum, that is sarcoplasmic reticulum, is a storehouse of the calcium ions. A characteristic feature of the muscle fiber is the presence of the large number of the partially arranged filaments in the sarcoplasm called myofilaments. इसी मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म में, जिसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं, उसमें होते हैं मायोफिलामेंट्स, जिनको हम मायोफिब्रिल्स भी कहते हैं. मायोफिलामेंट जिनको हम मायोफिब्रिल्स भी कहते हैं, मायोफिलामेंट जिनको हम मायोफिब्रिल, यही मायोफिब्रिल को हमें पढ़ना. पहले हमने स्केलेटल मसल लाई, स्केलेटल मसल में से हमने एक बंडल को निकाला जिसको हम फेसिकल भी कहते हैं. बहुत सारे बंडल्स होते हैं अटैच विद द हेल्प ऑफ द कॉमन कोलेजन टिश्यू, जिसको हम फेसिया भी कहते हैं. इस मसल बंडल में से हमने एक मसल फाइबर को बाहर निकाला. उस मसल फाइबर को जब हमने पढ़ा, उसको एक अपना सार्कोलीमा था, उसके अपना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम था जिसमें बहुत सारे कैल्शियम आयन स्टोर थे. उसके पास एक साइटोप्लाज्म था जिसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं. अब इसी मसल फाइबर के सार्कोप्लाज्म में बहुत सारे माइन्यूट मसल फाइब्रिल्स होते हैं. एक होता है मसल फाइबर, दूसरे होते हैं मसल फाइब्रिल्स, जिनको हम मायोफिलामेंट्स या मायोफिब्रिल्स कहते हैं. इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक, यही तो खासियत है, यही तो मसल फाइबर. मायोफिब्रिल ही नहीं होगा इसके साइटोप्लाज्म में, तब तो ये एक साधारण सी सेल है. अब इसके साइटोप्लाज्म में जो मायोफिब्रिल प्रेजेंट होता है, इसकी मदद से ये फिर कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन दिखाती है. Sarcoplasmic muscle fiber is syncytium, that is multinucleated condition. The endoplasmic that is the storehouse of the calcium ions. A characteristic feature of the muscle fiber is the presence of large number of parallelly arranged myofilaments in the sarcoplasm called as myofilaments or the myofibrils. Each myofibril has alternate light and the dark bands on it. A detailed structure of the myofibril has established that the striated appearance is due. जो skeletal muscle का striated appearance होता है, it is because of myofibril, क्योंकि myofibril में alternate light and dark bands present होते हैं, जिनको हम फर्दर पढ़ेंगे. एक्टिन मायोसिन क्या होता है वो. A detailed study of the myofibril has established that the striated appearance is due to the distribution pattern of the two important proteins, actin and the myosin. The light bands contain the actin and is called as the I band or isotropic band, whereas the dark band contains actin contains A or anisotropic band. A band myosin को कहते हैं A band और anisotropic band उसको actin जो होते हैं, they are called as light bands. The light bands contain actin and is called as the I band or isotropic band, and the dark bands contain myosin and are called as A band or anisotropic band. A band or anisotropic band. Muscle fiber is syncytium A, that sarcoplasmic containing nuclei. The endoplasmic reticulum, that is the sarcoplasmic reticulum of the muscle fiber, is the storehouse of the calcium ions. A characteristic feature of the muscle fiber is the presence of large number of the myofibrils called as myofilaments or the myofibrils. Each myofibril has alternate light and the dark bands. Actin and the myosin. The light bands contain the actin and is called as the I band or isotropic band, whereas the dark band contains myosin and is called as the A band or anisotropic band. Anisotropic band contains myosin filaments. Both the proteins are arranged as rod-like structures parallel to each other and also parallel to and longitudinal axes of the myofibrils. These are parallel to each other and also the longitudinal axes of the myofibrils. Actin filaments are thinner as compared to the myosin filaments. जो actin filaments होते हैं, जो I band या isotropic band बनाते हैं, dark light bands होते हैं, वो होते हैं thin. उसी की वजह से तो वो light band बनाएंगे. Whereas the myosin filaments hence are thin and thick filaments respectively. In the center of the I band is an elastic fiber called the Z line which bisects it. I band के बीच में एक elastic fiber present होता है जिसको हम Z line कहते हैं, which bisects the I band. I band किन से बनता है? I band is called the isotropic band. ये बनता है actin filament से, वो होते हैं thin filaments. Thin filaments के बीच में एक line होती है, elastic fiber होता है, that is called as the Z line, जो इस I band को bisect करता है. Then the thin filaments are firmly attached to the Z line.
The thick filaments in the A band are also held in the middle by a thin fibrous membrane. वहाँ पे एक elastic fiber होता है, यहाँ पे thin fibrous membrane that is called as the M line. M line bisects the A band. M line is a thin fibrous membrane, whereas Z line is the elastic fiber that bisects the I band. M line bisects the A band, Z line bisects the I band. The A and the I bands are arranged alternately through the length of the myofibril. The portion of the myofibril between the two successive Z line, अगर ये Z line है, Z line के यहाँ से एक्टिन फिलामेंट्स, यहाँ से एक्टिन फिलामेंट्स, यहाँ से एक्टिन, यहाँ से एक्टिन, यहाँ से एक्टिन, फिर बीच में है मायोसिन, यहाँ पे मायोसिन, यहाँ पे मायोसिन, फिर एक और लाइन Z line, यहाँ पे एक्टिन एक्टिन, यहाँ पे एक्टिन ऐसे एक्टिन, यहाँ ऐसे यहाँ तक एक्टिन एक्टिन कहेंगे, फिर यहाँ से एक्टिन, यहाँ से एक्टिन. The portion कहाँ पे, the portion of the myofibril between the two successive Z line, ये है Z line, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन उसको कहेंगे हम M line, और यहाँ पे एक और Z line, ये एक्टिन फिलामेंट्स और ये जो है मायोसिन फिलामेंट्स है. The portion of the myofibril between two successive Z lines, the portion of the myofibril between two successive Z lines is called as the sarcomere. In a resting state, the edges of thin filaments partially, resting state में जो thin filaments होते हैं वो partially overlap करते हैं thick filaments के, and the filaments center part of जो central part of the thick filaments जो overlap नहीं हुआ होता है उसको कहते हैं H zone कहते हैं उसको, H zone याद है मुझे, H zone. Simple. A band, I band is formed by the actin filaments that are also thin filaments. I band के बीच में एक elastic fiber होता है that's called as the Z line which bisects it. Z line के साथ attach होते हैं firmly thin filaments. इसी तरह जो thick filaments anisotropic band है, A band के बीच में एक fiber, एक thin fibrous membrane होता है जिसको हम M line कहते हैं. Resting state में the region of the myofibril between the two successive Z lines is called as the sarcomere. In the resting state, the thin filaments partially overlap the thick filaments. The portion of the thick filaments unoverlapped, जो overlap नहीं हुआ होता उसको कहते हैं H zone. Sarcomere समझ आया, M line भी, Z line भी, A band, I band, everything sorted. Most is parallel to each other as well as parallel to the longitudinal axis of the myofibril. Actin filaments are thinner and the thick and thick elastic fiber होता है. Z line is an elastic fiber whereas M line is a thin fibrous membrane. Z line I band में होता है. Z line I band, Z तो I का ही है एक्चुअली, I ऐसे बनेगा Z, ऐसे बनेगा I, ऐसे रहेगा यार. Z line बंद होता है I band के बीच में. The thick filaments in the A band are also held together by the middle of this band by a thin fibrous membrane called as the M line. ये तो पढ़ा है हमने, थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे. Z line, thin fibrous membrane called as the M line. The A and A bands are arranged alternately throughout the length of the myofibril. The portion of the myofibril between two successive Z lines is considered as a functional unit of the contraction and is called as the sarcomere. In the resting state, the ends of the thin filaments on either side of the thick filaments partially overlap the free ends of the thick filaments. The central part of the thick filaments not overlapped by thin filaments is called as the H zone. Structure of the thin and thick filament. That's contractile protein की हम structure अब पढ़ेंगे. Simple है, बहुत simple. Each actin filament is made up of two filamentous actins helically wound to each other. Each F actin is made up of is a polymer of the monomeric unit is called as the G actinus. Two filaments of the another protein, tropomyosin, also run to the F actinus throughout its length. A complex protein called as troponin is a complex protein, is distributed at regular intervals on the tropomyosin. In the resting state, a subunit of troponin masks the active binding sites for the myosin. A subunit of troponin masks the active binding sites for on the actin filaments. Active binding site for myosin on the actin filaments. Each actin filament जो होता है एक्चुअली दो चेन्स की तरह होते हैं जिनको हम एफ एक्टिन्स कहते हैं. हर कोई एफ एक्टिन बना होता है छोटे छोटे बॉल्स का जिनको हम जी एक्टिन्स कहते हैं. जी एक्टिन मोनोमर फिर जी एक्टिन मिला के बनाते हैं एक पॉलीमर दैट इज कॉल्ड एज एफ एक्टिन. दो वाउंड होते हैं फिर बनाते हैं वो एक्टिन. दो एफ एक्टिन्स के अलावा एक और दो स्ट्रक्चर्स वाउंड, दो स्मॉल चेन्स वाउंड होते हैं और द एफ एक्टिन्स जिनको हम ट्रोपोमायोसिन कहते हैं. उसके बाद ट्रोपोमायोसिन के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रेजेंट होता है एट रेगुलर इंटरवल जिसको हम ट्रोपोनिन कहते हैं. ट्रोपोनिन masks the active binding site is for the myosin on the actin filament. Therefore
सिंपल है, पहले दो एफ एक्टिन्स है, पहले दो एफ एक्टिन्स आएंगे, हर कोई एफ एक्टिन बना होता है छोटे छोटे ग्लोबुलर एक्टिन्स का, जिनको जी एक्टिन्स कहते हैं। एफ एक्टिन्स वाउंड होंगे हेलिकली और इच अदर, उनके ऊपर दो लेयर्स होंगे, दो माले और होंगे या दो चेनें और होंगी, जिनको हम ट्रोपोमायोसिन कहते हैं। उसके बाद ट्रोपोनिन, दैट इज अ कम्प्लेक्स प्रोटीन होता है प्रेजेंट एट रेगुलर इंटरवल्स ओवर द ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन का फंक्शन होता है, इट मास्क्स द एक्टिव बाइंडिंग साइट, मायोसिन की जो बाइंडिंग साइट होती है एक्टिन के ऊपर, वो मास्क करता है ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेट में, मास्क करता है, ठीक है। ईच उसके बाद है मायोसिन का स्ट्रक्चर। ईच मायोसिन दैट इज थिक फिलामेंट इज पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। इसके जो मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं मायोसिन, उनको हम कहते हैं मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन, हर किसी मीरोमायोसिन के दो पार्ट्स होते हैं, ए ग्लोबुलर हेड विद अ शॉर्ट आर्म एंड अ टेल। ए ग्लोबुलर हेड विद अ शॉर्ट आर्म एंड अ टेल। हेड और शॉर्ट आर्म को करेक्टली कहते हैं हम क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म, दैट्स कॉल्ड एज अ हैवी मीरोमायोसिन, एंड द टेल पार्ट को कहते हैं हम लाइट मीरोमायोसिन। हैवी मीरोमायोसिन दैट इज द हेड एंड द शॉर्ट आर्म, जिसको हम क्रॉस आर्म भी कहते हैं, हेड एंड शॉर्ट आर्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज हैवी मीरोमायोसिन, एंड द टेल इज कॉल्ड एज द लाइट मीरोमायोसिन। मायोसिन जो होते हैं, इनके जो मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं, उनको कहते हैं मीरोमायोसिन। हर किसी मीरोमायोसिन के जो दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है हेड विद शॉर्ट आर्म एंड अ टेल। हेड विद शॉर्ट आर्म को करेक्टली कह सकते हैं हम क्रॉस आर्म, इट्स आल्सो कॉल्ड एज हैवी मीरोमायोसिन, एंड द टेल इज आल्सो कॉल्ड एज द light myromyosin. The heavy myosin outwards at regular distance and angle from each other. The surface of the polymerized myosin filament and is known as the cross arm. The globular head is an active ATPase. Head के पास होता है ATPase enzyme and has the binding site for ATP and the active sites for their head जो होता है globular heavy myromyosin, जो head part होता है myosin का, उसी पे होता है ATPase enzyme और वहीं पे होता है binding site for the actin. Binding site for the actin वहीं पे present होती है actin binding actin actin binding site, ATP binding sites across actin binding site, ATP head, cross arm, short arm, heavy minomycin and light minomycin. Simply heavy minomycin, light short arm and head उसको कलेक्टली कहते हैं हम क्रॉस आर्म, शॉर्ट आर्म एंड हेड उसको कलेक्टली कहते हैं हम क्रॉस आर्म। Each thin filament is made up of two filamentous F actins helically bound to each other. Each F actin is a polymer of monomeric G actin is two filaments of the another protein tropomyosin, also run close to the F actin throughout its length. A complex protein called as the troponin is distributed at regular intervals on the tropomyosin. In the resting state, the subunit of the troponin masks the active binding sites for the myosin on the thin filamentous active filaments. Each myosin is a polymerized protein consists of the monomeric units called as the meromyosin, constitute one thick filament. Each meromyosin has two important parts, a globular head with a short arm and a tail, forming for called as a heavy meromyosin and the light meromyosin. Respectively, the heavy meromyosin projects outwards at regular distance and angle from each other, polymerizing. It is the site of the from surface cross arm बनाते हैं, इकट्ठे बनाते हैं हम cross arm, the short arm and head form cross arm. The globular head is an ATPase enzyme present होता है, इसके अलावा एक्टिव बाइंडिंग साइट्स पर एक्टिन प्रेजेंट होती है हेड पे, दैट इज द हैवी मेरोमाइसिन का जो हेड पार्ट होता है उसी पे होता है ATPase enzyme as well as the binding sites for ATP as well as the active sites for the actin. अब actin binding sites and ATP binding sites, ये सीधे डायग्राम आएगा। इट इज़ अ ट्रोपोनिन, जो यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन, जो यहाँ पे जी एक्टिन, इट्स द एफ एक्टिन, ये एफ एक्टिन है। सिंगुलर जो है यहाँ पे इसको जी एक्टिन का नाम देंगे, ये जो है इसको कहेंगे ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन यहाँ पे लिखे हैं, फिर भी लिखा है। मैकेनिज्म मसल कंट्रक्शन। अब मसल कंट्रक्शन की मैकेनिज्म क्या है, जिसको हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी भी कहते हैं। पहले ये याद रखना है कि कौन स्लाइड करता है किसके ऊपर। जो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द मैकेनिज्म मसल कंट्रैक्शन इज थिन फिलामेंट्स स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट्स, थिन फिलामेंट्स स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट्स। पहले हम ऐसे समराइज करेंगे जो हमें याद है पिछला। जब एक सिग्नल आती है एक मसल फाइबर मोटर एंड प्लेट के पास कि एक मसल को कंट्रैक्ट करना है, ठीक है, वहाँ पे कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर सिक्रीट रिलीज होते हैं इन द साइटोप्लाज्म लाइक एसिटाइल कोलिन। दीज न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या जाते ये जाते हैं एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के पास। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से वो कैल्शियम आयन बहुत सारे रिलीज करवाते हैं। सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से बहुत सारे कैल्शियम आयन जब रिलीज हुए वो जाते हैं सीधे ट्रोपोनिन को उठाते हैं। जब उन्होंने ट्रोपोनिन को अनमास्क किया, बाइंडिंग साइट को अनमास्क किया, ट्रोपोनिन को उठाया, जो एक्टिन था वो अब बाइंड हो जाएगा हेड ऑफ द मायोसिन के। जब हेड ऑफ द मायोसिन के साथ बाइंड होगा, बाइंडिंग के साथ साथ वहाँ पे एटीपीएस एंजाइम भी प्रेजेंट होगा, वहाँ पे एटीपी खर्च होगा और जो एक्टिन फिलामेंट होगा वो बनाएगा एक क्रॉस ब्रिज बनाएगा वहाँ पे। फिर होगा एक्टिन फिलामेंट स्लाइड और द एक्टिन फिलामेंट होगा स्लाइड और द मायोसिन फिलामेंट और द मायोसिन फिलामेंट और द मायोसिन फिलामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट।
उसके बाद जब रिलैक्सेशन होगी सारी जो कैल्शियम थी हमारी जो सार्कोप्लाज्म में थी वो सारी वापस ड्रेन की जाएगी, रिटेन की जाएगी इन द सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम। फिर से ट्रोपोनिन आएगा, वो फिर से बैठेगा अपनी जगह ट्रोपोमायोसिन के पास, वो फिर मास करेगा फिर से और फिर से होगी रिलैक्सेशन। कंट्रैक्शन के टाइम कैल्शियम आयन्स निकले, उन्होंने ट्रोपोनिन को उठाया और रिलैक्सेशन के वक्त इससे बिल्कुल अपोजिट होगा, ट्रोपोनिन वापस बैठेगा tropomyosin पे। Mechanism of the muscle contraction is best explained by the sliding filament theory, which states that the contraction of the muscle fiber takes place by the sliding of thin filaments or the thick filaments. ये याद रखना है, sliding of the actin filaments or the muscle contraction is initiated by the signal sent by the central nervous system to a motor neuron. A motor neuron along with the muscle fiber is called as the motor end palate, जिसको हम neuromuscular junction भी कहते हैं. The junction between the motor neuron and the sarcolemma or the muscle fiber is called as the neuromuscular junction or the motor end palate. A neural signal reaching this junction releases neurotransmitter called as acetylcholine, which generates the action potential in the sarcolemma. This spreads through the muscle fiber and causes the release of calcium ions into the sarcoplasm. Increase in the calcium ions leads to the binding of the calcium with the subunit of the troponin on the actin filaments and thereby removing the masking active sites for the myosin, utilizing the energy of the ATP head releases the myosin head now binds to the exposed active sites on the actin to form a cross bridge. यहाँ पे एनर्जी खर्च होगी वो और वो क्रॉस ब्रिज बनाएंगे, क्रॉस ब्रिज जो ही बना क्रॉस ब्रिज बनाएंगे. therefore क्रॉस शॉर्ट आर्म प्लस हेड इज कॉल्ड एज क्रॉस आर्म फिर जब एक्टिन से बाइंडिंग एक्ट से उसके बाद बनाएंगे हम क्रॉस ब्रिज. क्रॉस आर्म, शॉर्ट आर्म, क्रॉस आर्म एंड क्रॉस ब्रिज ये डिफरेंट चीज़ें हैं. क्रॉस आर्म पहले शॉर्ट आर्म हेड के साथ बनाएंगे, शॉर्ट आर्म हेड के साथ मिलकर बनाएंगे क्रॉस आर्म, फिर क्रॉस आर्म जब बाइंड होगा विद द एक्टिन वो बनाएगा क्रॉस ब्रिज बनाएगा विद द हेल्प ऑफ द एटीपी, जो एटीपी एंजाइम प्रेजेंट था ऑन द हेड. This pulls the attached actin filaments towards the center of the A band. This pulls the Z line attached to these actins also pull towards, thereby causing the shortening of the SUR. Therefore during contraction क्या होता है, जो actin filaments होते हैं अटैच किसके साथ, Z line के साथ, वो एक दूसरे के साथ कंट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं. उसकी वजह से जो Z lines होते हैं वो एक दूसरे के करीब आई. Z line जब एक दूसरे के करीब आई तो H zone तो डिसअपियर हुआ, सार्कोमेयर की लेंथ कम हो गई, H zone टोटली डिसअपियर हुआ. कंट्रैक्शन इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव स्टेप दैट ड्यूरिंग शॉर्टिंग ऑफ द मसल फाइबर दैट इज कंट्रैक्शन द आई बैंड, जो आई बैंड था वो रिड्यूस हो जाएगा. ए बैंड तो अपनी जगह है, उसको कुछ नहीं हुआ इफेक्ट, खाली जो जेड लाइन था वो तो नजदीक आए, लेकिन ए बैंड अपनी जगह, ए बैंड रिटेन द लेंथ, द myosin release the ATP, release new ATP bands and the cross bridge is broken, the ATP is again hydrolyzed by the myosin head and the cycle, जो ऐसे साइकिल कंटिन्यू होता है. एच जोन तो टोटली डिसअपियर हो जाता है, आई बैंड रिड्यूस हो जाता है, ए बैंड रिटेन होता है अपनी लेंथ, ए बैंड रिटेन करता है अपनी लेंथ, सार्कोमेयर की लेंथ डिक्रीज हो जाती है, सार्कोमेयर की लेंथ डिक्रीज हो जाती है. ये याद रखना जरूर कंट्रैक्शन क्या क्या होता है. सिंपल अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ द मसल फाइबर याद है, एक्टिन फिलामेंट पहले एक्टिन फिलामेंट फर्मली अटैच थे विद द जेड लाइन, दो जेड लाइन के दरमियान जो जगह थी उसको कहते हैं हम सार्कोमेयर. एक्टिन फिलामेंट्स फिर पार्शली ओवरलैप करते हैं रेस्टिंग स्टेट में मायोसिन फिलामेंट्स को, और मायोसिन फिलामेंट्स को द रीजन बिटवीन द रीजन ऑफ द मायोसिन फिलामेंट्स जो ओवरलैप नहीं हुआ होता है उसको कहते हैं हम एच जोन. आई बैंड को जो बाइसेक्ट करती है लाइन उसको कहते हैं हम जेड लाइन. ए बैंड को जो बाइसेक्ट करती है मेम्ब्रेन, थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन, उसको कहते हैं हम एम लाइन. एच जोन भी आया समझ, सार्कोमेयर भी आया समझ. जब कंट्रैक्शन होगी तो दो जेड लाइन्स एक दूसरे के करीब आएंगे, उससे आई बैंड रिड्यूस होगा, सार्कोमेयर भी रिड्यूस होगा, एच जोन तो गायब ही हो जाएगा, ए बैंड रिटेन करेगा लेंथ. दिस ऑकर्स ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के टाइम इसके बिल्कुल अपोजिट होगा. सिंपल एज इट इज. क्रॉस ब्रिज आया समझ, क्रॉस ब्रिज कैसे बना, शॉर्ट आर्म आया समझ, क्रॉस आर्म सब कुछ आया समझ. अल्हम्दुलिल्लाह. Cause the further sliding, the process continues till the calcium ions are pumped back to the sarcoplasmic cisternae, resulting in the masking of the. ये तब तक ये कंट्रैक्शन कंटिन्यू होगी जब तक जो कैल्शियम रिलीज नहीं हो, जो हुआ था रिलीज इनटू द सार्कोप्लाज्म उसको वापस ड्रेन किया जाए इनटू द सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम. तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगी. कंट्रैक्शन कंटिन्यूज टिल द ऑल द कैल्शियम आयन्स जो प्रेजेंट थे ना इन द सार्कोप्लाज्म उनको वापस ले जाएंगे कहाँ पे, इन द सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम. तब तक कंट्रैक्शन कंटिन्यू होगी. This causes the return of the Z line back to the original position, that is relaxation. The reaction time of the fibers can vary different muscles. Reaction time, कौन कितना जल्दी कंट्रैक्ट होगा, कौन कितना जल्दी रिलैक्स होगा, that is reaction time. ये different muscle fibers का different होता है. The reaction time of the muscle fibers can vary in different muscles. The reaction time of the fibers varies in different muscle fibers. Repetition activation of the muscles can lead to the accumulation of the lactic acid due to the anaerobic breakdown of the glycogen in them, causing fatigue. अगर हम ज़्यादा मसल्स को कंट्रैक्ट रिलैक्स कराएंगे, रिपीट एक्टिवेशन ऑफ द मसल फाइबर्स, उससे क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा लैक्टिक एसिड हमारे जो मसल फाइबर्स में वहाँ पे एक्यूमुलेट होगा लैक्टिक एसिड ड्यू टू द एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ द ग्लाइकोजन दैट इज प्रेजेंट इन द मसल फाइबर्स. वहाँ पे लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होगा, उस लैक्टिक एसिड की
स्टिमुलेशन की वजह से हमें फैटीग आता है। फैटीग किसकी वजह से आता है? जब हम कंटिन्यूड एक्टिवेशन करते हैं। एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है? जब कंटिन्यूड सिग्नल भेजते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जब कंटिन्यू कैल्शियम निकलता है, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन होती है और वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है, जिसकी वजह से हमारे मसल फाइबर्स में फैटीग आ जाता है। मसल कंटेन्स रेड कलर। देखो, हमारे ब्लड में एक रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है हमारे ब्लड में। एक रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। वो ऑक्सीजन को स्टोर नहीं करता, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। देयरफॉर हीमोग्लोबिन इज एन रेड कलर्ड ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट। रेड कलर्ड ऑक्सीजन। इसके अलावा हमारे मसल फाइबर्स में एक रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है। कैरी नहीं, स्टोरिंग पिगमेंट, उसको कहते हैं मायोग्लोबिन। जिस मसल फाइबर में मायोग्लोबिन ज़्यादा पाया जाता है उनकी जो अपीयरेंस होती है वो रेडिश होती है, उनको हम रेड मसल फाइबर्स कहते हैं। उनमें ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा ये मायोग्लोबिन पाया जाता है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा प्लेंटी पाया जाता है, उनको हम एरोबिक मसल्स भी कहते हैं, रेड मसल फाइबर्स एरोबिक। इसी तरह दूसरे मसल फाइबर्स होते हैं जिनमें मायोग्लोबिन कम पाया जाता है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया कम पाया जाता है, उनको एनारोबिक मसल फाइबर्स भी कहते हैं या वाइट मसल फाइबर्स भी कहते हैं। दीज आर द डिफरेंट रेड मसल फाइबर एंड द वाइट मसल फाइबर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, रेड मसल फाइबर में तो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है, लेकिन वाइट मसल फाइबर के पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एक्टिवेशन, उनमें ज़्यादा एक्टिविटी पावर होता है। क्योंकि जितना सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होगा उतना तो कैल्शियम होगा, जितना कैल्शियम होगा उतना कैल्शियम निकलेगा, वो ट्रोपोनिन को उठाएगा, जितना ट्रोपोनिन उठेगा उतनी कंट्रैक्शन ज़्यादा होगी। देयरफॉर हम ये कहेंगे मेन डिफरेंस तो ये है, मायोग्लोबिन हो उसमें ज़्यादा, उसमें कम होता है। उनको रेडिश अपीयरेंस होता है, उनको येलोइश या वाइट अपीयरेंस होती है, उनको वाइट फाइबर्स कहते हैं, इनको रेड फाइबर्स कहते हैं। उनमें मायोग्लोबिन ज़्यादा, उनमें कम होता है। सिंपल। उनको स्लो कहेंगे, उनको फास्ट। फास्ट कंट्रैक्शन में किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में ज़्यादा हो, जिनमें ज़्यादा हो, या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा हो उनमें फास्ट कंट्रैक्शन होगी, उनको फास्ट मसल फाइबर्स भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Muscle content is a red color oxygen stored pigment called as the myoglobin. Myoglobin content is high in some of the muscles, which gives a reddish appearance. Such muscles are called as red fibers. They are called slow muscles. The muscles contain plenty of mitochondria, which utilize large amount of oxygen stored in the body. They are called as aerobic muscles. On the other hand, some of the muscles possess a very less quantity of the myoglobin and therefore pale or whitish. They are called as white fibers. Number of mitochondria also few in them, but the amount of the sarcoplasmic reticulum is high. They depend on the anaerobic process of energy. They depend on anaerobic processes for energy. Anaerobic processes, that is लैक्टिक एसिड जो बनता है ड्यूरिंग द एनारोबिक डिग्रेडेशन ऑफ द ग्लाइकोजन मसल फाइबर्स में, जिसकी वजह से फैटीग आ जाता है। देयरफॉर फास्ट मसल फाइबर्स कौन होती है? वाइट मसल फाइबर्स आर फास्ट, उनमें फास्ट कंट्रैक्शन होती है क्योंकि उनमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, जो ये हमारा मस्कुलर सिस्टम कंप्लीट हो। अभी हमें स्केलेटल सिस्टम पढ़ना है, बहुत आसान है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। पता नहीं लोकोमोशन मूवमेंट में इतना टाइम कम क्यों लग रहा है हमें, क्योंकि हमने पहले ही बहुत रिविजन्स किए हैं इस चैप्टर्स के। अभी हम स्केलेटल सिस्टम के पास आएंगे। स्केलेटल सिस्टम में क्या रखने हैं याद? सिंपली बोन्स के नाम। पहले हम एक्शियल स्केलेटल, फिर एपेंडिकुलर स्केलेटल। एक्शियल स्केलेटल में क्या क्या आता है? जो एक्सिस, अगर हम बॉडी के बीच में एक्सिस डालेंगे उसमें जो बोन आएंगे उसको हम एक्शियल स्केलेटल में गिनेंगे। उसकी जो साइड में आते हैं गर्डल्स आते हैं, पेल्विक गर्डल आता है, पेक्टोरल गर्डल्स आते हैं, उनको हम एपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। ठीक है ना? फिर एक्शियल स्केलेटल में पहले ही आता है हमारा स्कल, फिर आता है हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम आती है पीछे से, सामने से आते हैं रिब्स, उसके साथ स्टर्नम, फिर आते हैं पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल। ये सारे बोन्स हमने पढ़ने हैं इन द स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में इज द फ्रेमवर्क ऑफ द बोन्स एंड ए फ्यू कार्टिलेज। स्केलेटल सिस्टम में खाली बोन्स ही नहीं आते हैं, उसके बाद कार्टिलेज, लेकिन ज़्यादातर स्केलेटल सिस्टम में बोन्स होते हैं और कुछ कार्टिलेज होते हैं। This system is a significant has a significant role in the movement shown by the body. Imagine chewing food without jaw bones and walking around without the limb bones. Bone and cartilage are specialized connective tissues. These are the adipose, bone, cartilage, blood are the specialized connective tissue. पढ़ा था हमने पहले ही special organs animals में। Adipose, bone, blood, cartilage are the special. Bone and the cartilage are the specialized connective tissues. The foreman has a very hard matrix due to calcium salts in the, and later has a slightly pliable matrix due to the chondroitin salt. Bone में होते हैं कैल्शियम साल्ट्स, इसकी वजह से उसका मैट्रिक्स बहुत हार्ड होता है। इसी तरह कार्टिलेज में कॉन्ड्राइटिन साल्ट्स होते हैं, उसकी वजह से वो स्लाइटली प्लीएबल या सॉफ्ट कहेंगे एज कम्पेयर टू बोन। सॉफ्ट नहीं होता है कार्टिलेज, बट कंपेरेबली जब बोन के साथ कंपेयर करेंगे वहाँ पे जो कार्टिलेज होता है इट इज़ कंपेरेबली सॉफ्ट एज कम्पेयर टू बोन। जो कार्टिलेज का
मैट्रिक्स होता है, इट इज़ स्लाइटली प्लेएबल ड्यू टू कॉन्ट्राइटिंग साल्ट्स। जो बोन का मैट्रिक्स होता है, इट इज़ हार्ड एंड नॉन प्लेएबल, इट्स हार्ड एंड नॉन प्लेएबल बिकॉज ऑफ कैल्शियम साल्ट्स। बोन में ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है ड्यू टू कैल्शियम साल्ट, ये याद रखना है, कैल्शियम साल्ट एंड कॉन्ट्राइटिंग साल्ट, सिंपल। In human beings, there are approximately 206 bones. Human beings and few cartilages. कुछ cartilages approximately 206 bones होते हैं in the human adult. Human adult की बात है, human adult में total 206 bones होते हैं. It's grouped into two axial and appendicular skeleton, जो हमने पहले ही पढ़ा. Axial skeleton में 80 bones होंगे और rest in the appendicular skeleton. Axial skeleton में 80 bones होते हैं, 80 bones in the axial skeleton. Along with the main axis, skull आता है, vertebral column आता है, sternum and the ribs, ये तो पहले ही पढ़ा. अगर हम एक बॉडी के बीच में एक्सिस डालेंगे, उनमें जो जो बोन्स आएंगे उनको हम एक्सियल स्केलेटन में गिनेंगे. एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स होते हैं. एक्सियल स्केलेटन में पहले ही स्टार्ट होगा फ्रॉम द स्कल, फिर होगा वर्टेब्रल कॉलम, उसके बाद सामने से स्टर्नम, साइड से रिब्स, ये सारे जो बोन्स आते हैं ये आते हैं एक्सियल स्केलेटन में. टोटल बोन्स कितने होते हैं एक्सियल स्केलेटन में? 80. पहले हम स्कल के बारे में पढ़ेंगे. स्कल की कुछ डायग्राम है यहाँ पे. सिफेनॉइड, सिग्मॉइड, पार्शल, पहले ऊपर से फ्रंटल बोन, फ्रंटल के बिल्कुल पीछे होती है ऑसिपिटल बोन, साइड्स में होते हैं टेम्पोरल दो, ऊपर होती है पैराइटल दो, पैराइटल टेम्पोरल ऑसिपिटल. इसी तरह जाइगोमेटिक, लैक्रिमल, आँख के पीछे लैक्रिमल, नोज तो नेजल बोन होती है, आँख के नीचे जाइगोमेटिक, आँख के पीछे लैक्रिमल, लैक्रिमल के पीछे सिफेनॉइड. सिफेनॉइड बोन को नाम याद रखना है, सिफेनॉइड बोन वो बोन होती है जिसपे हमारा जो ब्रेन है वो रेस्ट करता है ऑन द सिफेनॉइड बोन. आवर ब्रेन रेस्ट्स ऑन सिफेनॉइड बोन. हमारी आँख के पीछे कौन सी बोन? लैक्रिमल बोन. लैक्रिमल बोन के पीछे कौन सी बोन? सिफेनॉइड बोन, सिफेनॉइड बोन. और जो जाइगोमेटिक बोन होती है वो आँख के नीचे, आँख के पीछे होती है लैक्रिमल बोन, आँख के नीचे होती है जाइगोमेटिक बोन. जाइगोमेटिक बोन के नीचे मैक्सिले में, जा के नीचे मैंडिबल. हायार्ड बोन जो कहते हैं, हायार्ड बोन होती है टंग के नीचे. टंग को भी एक अलग बोन है, हायार्ड बोन, टंग बोन. इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सिकल. सिकल में टोटल कितने बोन्स होते हैं? 22 बोन्स. उसमें दो आते हैं टोटल, क्रेनियल एंड द फेशियल बोन्स. 22 होते हैं टोटल स्कल में, उसमें से 8 होते हैं क्रेनियम बोन्स और दे फॉर्म एंड द हार्ड प्रोट्रूड कवरिंग क्रेनियम फॉर द ब्रेन. द फेशियल रीजन कंसिस्ट ऑफ द 14 skeletal elements which form the front part of the skull. Single U-shaped bone called as the hyoid bone, which is present at the base of the buccal cavity. It is also included in the skull. It is also included into the skull. It is also included into the skull. It is also included in the skull. जो बोन पढ़ते हैं हम, हायर्ड बोन. इट इज़ अ यू शेप्ड बोन दैट इज प्रेजेंट बिलो, द यू शेप्ड बोन दैट इज प्रेजेंट बिलो द सरफेस ऑफ द टंग, दैट्स कॉल्ड. इट्स आल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल. हमारे टोटल जो स्कल होता है उसमें होते हैं टोटल 22 बोन्स. उसमें से क्रेनियम में होते हैं 8 बोन्स और फेशियल में होते हैं 14 बोन्स. फेशियल में होते हैं 14 बोन्स. ए सिंगल यू शेप्ड बोन जो हायर्ड बोन होती है, इट इज़ अ सिंगल यू शेप्ड बोन. इट इज प्रेजेंट बिलो द टंग. इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन टू द स्कल. ईच मिडल ईयर कंटेन्स 3 ईयर ऑस्कल्स. जो सबसे छोटे बोन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारे ईयर ऑस्कल्स. किस वाले ईयर में? मिडल ईयर में प्रेजेंट होते हैं. दे इंक्रीज द एफिशिएंसी विद विच द साउंड. वो हमें आगे पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर में. efficiency. Ear ossicles, malleus incus and stapes. Ear ossicles, these 3 bones are also included in the skull. ये 3 bones भी include होते हैं किसमें? skull में. Each middle ear contains 3 tiny bones, malleus, incus, and stapes. Malleus incus is collectively called ear ossicles. Collectively called ear. The skull region articulates with the superior region. Malleus, incus, and stapes. The skull articulates with the superior region of the vertebral column with the help of 2 condyles. हमारे पास 2 condyles होते हैं, दो condyles होते हैं, जिसकी वजह से skull जो है वो articulate करता है with the vertebral column. Therefore हमारा जो skull है इसको कहते हैं हम dicondylic skull. Vertebral column with 2 occipital condyles is called as dicondylic skull. हमने पढ़ा पहले ही एक्शियल स्कल. एक्शियल स्कल में टोटल 80 बोन्स होते हैं. एक्शियल स्कल में क्या क्या आता है? स्कल आता है, वर्टेब्रल कॉलम आता है, स्टर्नम आता है, रिब्स आता है. उसके बाद स्कल में आते हैं टोटल 22 बोन्स. क्रेनियम में 8 और फेशियल में 14. इसके अलावा यू शेप्ड बोन एक स्पेसिफिसिटी यहाँ पे दी गई है. यू शेप्ड बोन, हायर्ड बोन दैट इज प्रेजेंट बिलो द सरफेस ऑफ द टंग. इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल. इसके अलावा ईयर ऑस्कल्स जो होते हैं 3 बोन्स, मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज, वो भी इंक्लूड होते हैं स्कल में ही. हमारा स्कल आर्टिकुलेट करता है विद द वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ 2 ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स. देयरफॉर आवर स्कल इज डाइकॉन्डिलिक. इट इज नॉट मोनोकॉन्डिलिक, इट इज डाइकॉन्डिलिक. ज़िकॉन्डिलिक कٲشِر पट्टी. वर्टिब्रल कॉलम बहुत आसान है.
It is formed by 26 serially arranged units called vertebrae and is dorsally placed. हमारा vertebral column dorsally placed होता है. vertebral column के बीच में पता ही हमारा spinal cord present होता है. vertebral column हमारा dorsally present होता है. It is made up of 26 serially arranged. 13 pairs भी आ सकता है वहाँ पे, या डायरेक्टली 26 आएगा, या तो 13 pairs आएगा या क्वेश्चन में, या 26 आएगा, जिनको हम vertebrae कहते हैं. vertebrae हमारे वर्टिब्रल कॉलम में कितने वर्टिब्रे होते हैं? 13 पेयर्स और 26 वर्टिब्रे सीरियली अरेंज्ड डॉर्सली प्लेस्ड. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द सिकल एंड कॉन्स्टिट्यूट्स द मेन framework of the trunk. It extends from the base of the sickle and constitutes the main framework of the trunk. Our vertebral column is formed of 26 serially arranged units called as a vertebrae and is dorsally placed. Each vertebrae has central hollow portion called as neural canal through which the spinal cord passes. First vertebrae is called as the atlas. हमारी vertebral column की जो first vertebrae है उसका नाम है atlas. हमारे साइकिल का नाम atlas. First vertebrae is called atlas and it articulates with the occipital condyles. That two occipital condyles जो हमने पढ़ा पहले ही. हमारा जो skull है it articulates to the vertebral column with the help of two occipital condyles. Therefore our skull is dicondylic. The vertebral column is differentiated into the C7 T12 C7 T12 L5 S1 fused C1 fused, that is cervical 7, thoracic 12, lumbar C7 T12 L5 lumbar 5, sacral 1 fused. इसी तरह सर्विकल 1 फ्यूजड, सैक्रल 1 फ्यूजड, सर्विकल 1 फ्यूजड. यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, द नंबर ऑफ द सर्विकल वर्टिब्रे आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. सर्विकल वर्टिब्रे का जो नंबर होता है दैट इज 7. हर किसी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब हर किसी, लगभग हर किसी मैमल में सर्विकल वर्टिब्रे 7 होते हैं. C7 T12 L5 S1 फ्यूजड C1 फ्यूजड, सैक्रल 1. The vertebral column protects the spinal cord, supports the head, and serves as the point of the attachment of the ribs and the musculature of the back. Sternum is a flat bone on the ventral mid of the thorax. स्टर्नम को कहते हैं हम ब्रेस्ट बोन. ये होती है प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड. वेंट्रल साइड स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं रिब्स वेंट्रली, और वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होते हैं रिब्स डॉर्सली. डॉर्सली अटैचमेंट. देयरफॉर वर्टिब्रल कॉलम क्या कर, एक तो करता है प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड को, दूसरा ये अटैचमेंट देता है रिब्स को, सपोर्ट करता है हेड को, मस्कुलेटर और बैक को एक सपोर्ट देता है अलग वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम कंप्लीट हुआ. 26 serially arranged bones called as a vertebrae. वर्टिब्रे. फर्स्ट वर्टिब्रे का नाम है एटलस. फिर हमने पढ़ा इसमें कितने वर्टिब्रेस होते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ी उनमें. C7 T12 L5 S1 फ्यूजन. सर्विकल वर्टिब्रे होते हैं 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल. इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे. उसके बाद हमने पढ़ा वर्टिब्रल कॉलम की फंक्शंस क्या होते हैं. इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, इट गिव्स द साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर रिब्स, इट सपोर्ट्स द हेड, it also provides a musculature of the back. उसके बाद है sternum is a single bone, it's a flat bone, it is present on the ventral side, it's also called as a breastbone. It gives a site of attachment for the ribs on the ventral side. Simple. उसके बाद पढ़ना है हमें रिब्स. वर्टिब्रे होते हैं 13 पेयर्स, रिब्स होते हैं 12 पेयर्स. 24 रिब्स होते हैं हमारे पास टोटल. वर्टिब्रे होते हैं टोटल हमारे पास 26, याद रखना है. अब हमें पढ़ना है रिब्स के बारे में. देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स. हमारी जो स्टर्नम इट इज आल्सो फ्लैट बोन. There are 12 pairs of ribs. Each rib is a thin. It is not thick, it is thin. Good. Flat bone connected dorsally to the vertebral column and ventrally to the sternum. It has two articulation surfaces on its dorsal end and his bicephalic. ये sentence मुझे भूल जाता है. Our rib is bispheric. It has two articulation with it on its dorsal side की dorsal end, and hence it is bicephalic. First 7 ribs, वहाँ पे भी C7 था, यहाँ पे भी first 7 ribs are called true ribs. Dorsally they are attached to the thoracic vertebrae and ventrally they are attached to the sternum, that is with the help of the hyaline cartilage. First one. उसके बाद 8th, 9th and the 10th pair of ribs do not articulate directly with the sternum, but articulates with the 7th rib, with the help of the hyaline cartilage. They are called as false ribs. उनको कहेंगे हम vertebrochondral ribs. Ribs. False ribs होते हैं 3 pairs. The last 2 pairs, 11th and the 12th pairs of ribs, they therefore called as floating ribs. Ribs are not connected ventrally and therefore they are called floating ribs. Thoracic vertebrae, that is T12. Ribs and the sternum. Thoracic vertebrae, ribs and the sternum forms rib cage.
thoracic vertebrae, ribs and sternum forms the rib cage. Thoracic vertebrae, ribs and sternum forms the rib cage. Thoracic vertebrae, रिब्स और स्टर्नम तो पता ही है, ये तो रिब केज में रिब्स और स्टर्नम तो आएंगे। उसके बाद है कौन सी वर्टिब्रे आएंगी जो सबसे ज़्यादा है। थोरेसिक 12 होती हैं, 12, आगे से 12 रिब्स, पीछे से 12 वर्टिब्रे। वर्टिब्रल कॉलम नहीं आया है इसमें, नहीं वर्टिब्रे, खाली वर्टिब्रे लिखा है। 12 thoracic vertebrae, 12 pairs of ribs, first 7 pairs of ribs जो होती है dorsally they are attached to vertebral column, ventrally they are attached to the sternum with the help of the hyaline cartilage, sternum with the help of the hyaline cartilage। उसके बाद 8th 9th and the 10th pairs of ribs जो होते हैं उनको vertebral contour ribs कहते हैं। they are not attached directly, नहीं attach होते हैं sternum, बल्कि 7th rib के साथ attach होते हैं, उनको कहते हैं vertebral contour ribs, also called as falls ribs। उसके बाद जो लास्ट 2 pairs होते हैं 11th and the 12th pair of ribs, they जो ventrally connect नहीं होते हैं, इसलिए उनको floating ribs कहते हैं। ribs, sternum and the thoracic vertebrae collectively forms the rib cage. There are 12 pairs of vertebrosternal, vertebrochondral, dorsally vertebral column and ventral। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं बोल जाता हूँ ये पॉइंट, इसलिए इसको डिफरेंट कलर से हाईलाइट करेंगे यहाँ पे। ईच रिब हैज़ 2 आर्टिकुलेशन ऑन द डॉर्सल एंड, ये वो बहुत कंफ्यूज करेगा वहाँ पे डॉर्सल एंड या वेंट्रल एंड, इसीलिए डॉर्सल एंड के 2 आर्टिकुलेशन सरफेस होते हैं हर किसी रिब की, देयरफॉर इट इज़ बाइसेफेलिक। हमारा स्कल होता है डाइकॉन्डलिक, इसी तरह हमारी रिब होती है बाइसेफेलिक, इट हैज़ 2 आर्टिकुलेशन सरफेसेस, वो भी ऑन द डॉर्सल साइड, देयरफॉर इट इज़ बाइसेफेलिक। It has 2 articulate surfaces on the dorsal and hence called as the bicephalic. First 7 pairs of the ribs are called as the true ribs. First 7 pairs of ribs are called true ribs with the hyaline cartilage. Articulately with the sternum, but with the 7th with the help of the hyaline cartilage, they are called as the vertebral column, follows the last two. Ventrally तो कनेक्ट होते ही नहीं, floating with thoracic vertebrae, ribs and the sternum together form the rib cage. Thoracic vertebrae, ribs and the sternum together form the rib cage. Thoracic vertebrae, ribs and the sternum together form the rib cage. The bones of the limbs along with their girdles, bones of limbs, जो limbs आते हैं और उनके साथ जो girdles आते हैं उनको करेक्टली कहते हैं हम the bones of limbs along with their girdles constitute the appendicular skeleton। appendicular, each limb is made of 30 bones। each limb, हर एक limb के पास कितने bones होते हैं? 30 bones। हमारे एक्सल skeleton में कितने थे bones? टोटल 80 bones। हमारे हर एक limb, हमारे पास कितने limbs हैं? 4 limbs, हर एक limb में कितने bones? 30 bones। limbs plus girdles equal to appendicular skeleton। appendicular skeleton, the bones, sorry, the bones of the limbs along with their girdles, appendicular system, each limb is made of 30 bones। the bones of the hand, 4 limb are, 4 limb में अगर जो bones कहेंगे ऊपर से पहले आएगी ह्यूमरस एक बोन, फिर रेडियस अल्ना यहाँ पे जो होती है रेडियस अल्ना, उसके बाद ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, उसके बाद कार्पल्स, रिस्ट बोन्स, इनको हम कार्पल्स कहते हैं, और रिस्ट बोन 18 नंबर। उसके बाद जो ये होते हैं इनको कहते हैं मेटाकार्पल्स, और पाम बोन्स 5 इन नंबर। उसके बाद जो फैलेंजेस दे आर 14 इन नंबर, उनको फैलेंजेस कहते हैं। फीमर, थाई बोन, टिबिया फिबुला, टिबिया फिबुला, टार्सल्स, टार्सल एंकल 7 होते हैं। टार्सल्स यहाँ पे हैं कार्पल्स, यहाँ पे हैं टार्सल्स, ये हैं 8, ये है 7। मेटाटार्सल्स यहाँ पे है फैले, मेटाकार्पल्स यहाँ पे है मेटाटार्सल्स, ये भी 5, ये भी 5। यहाँ पे है फैलेंजिस 14, यहाँ पे भी फैलेंजिस 14। लास्ट में है यहाँ पे हमारे पास होता है कप शेप बोन कॉल्ड एज द पेटिला नी वेंट्रली करता है। सिंपली हमारी हर एक लिम्ब में टोटल 30 बोन्स होते हैं। अगर हम पहले पढ़ेंगे 4 लिम्ब में होता है पहले ही ह्यूमरस के बाद रेडियस अल्ना, उसके बाद कार्पल्स होते हैं, रिस्ट बोन जिनको कहते हैं, दे आर 18 नंबर। उसके बाद मेटाकार्पल्स जो होते हैं वो होते हैं 5 इन नंबर। उसके बाद फैलेंजेस होते हैं 14 नंबर। इसी तरह जो हमारी 4 लिम्ब हाइंड लिम्ब है, हाइंड लिम्ब में होता है पहले ही थाई बोन, लॉन्गेस्ट बोन फीमर कहते हैं उसको। थाई बोन के बाद है हमारे पास टिबिया फिबुला, थाई बोन के बाद है हमारे पास टिबिया फिबुला, टिबिया फिब्यूला के बाद है हमारे पास टार्सल्स होते हैं 7 इन नंबर। उसके बाद मेटाटार्सल्स होते हैं 5 इन नंबर। फैलेंजेस भी होते हैं 14 इन नंबर। लेकिन इसके अलावा होती है एक वेंट्रल नी कैप जिसको कहते हैं हम पेटिला बोन, वेंट्रली कवर्स द नी कैप। टोटल बोन्स आते हैं फिबिया टिब्यूला रेडियस अल्ना तमाम वाला कोई कवर। मेटाटार्सल्स कितने होते हैं? ये कंफ्यूज करेगा कार्पल और टार्सल। कार्पल्स होते हैं बराबर 8, टार्सल्स होते हैं 7, क्योंकि उनकी एक बोन प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ पेटिला नियर द नी कैप वेंट्रली लोकेटेड, ये याद रखना है। पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल बोन्स हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ द अपर एंड द लोअर लिम्स रेस्पेक्टिवली। एक्शियल स्केलेटन को जो ज्वाइन करते हैं विद द लिम्स के साथ उनको कहते हैं हम गर्डल्स, उनको कहते हैं हम गर्डल्स।
Pectoral and the pelvic girdle bones help in the articulation of the upper and the lower limbs, respectively. The axial skeleton. Each girdle is formed of two halves. Each girdle is formed of two halves. ये याद रखना है. लेफ्ट जो हमारे पास होता है स्केपुला, इसको गर्डल नहीं कहते हैं, इसको हाफ कहेंगे. हमारे पास टोटल गर्डल्स होते हैं दो, एक पेक्टोरल एक पेल्विक. हर किसी गर्डल के दो हाउस होते हैं. अब एक हाफ पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. ईच गर्डल इज फॉर्म्ड ऑफ टू हाउस. Each girdle is formed of two halves. Each half of the pectoral girdle consists of a clavicle and a scapula. Scapula is a large triangular flat bone located between the between the second and the seventh rib. Between the second and the seventh. Scapula SSS between the second and seventh rib के दरमियान present होती है scapula. The dorsal flat triangular body of scapula has a slightly elevated ridge. Dorsal side पे जो scapula पे होता है एक elevated ridge जिसको हम acromion कहते हैं, ridge acromion. The clavicle articulates with the clavicle articulate करती है acromion के साथ. Below the acromion के नीचे एक depression होता है. This is called as the glenoid cavity. Below the acromion is a depression called as the glenoid cavity, which articulates with the head of the humerus to form the shoulder joint. जो articulate करती है with the head of the humerus to form the shoulder joint. Each clavicle is a long slender bone with two curvatures. This bone is commonly called as the collarbone, और clavicle को कहते हैं हम collarbone, personality bone भी कहते हैं collarbone. Each clavicle has two curvatures. अगर हम पढ़ेंगे हमारे pectoral girdle में क्या क्या आता है, एक scapula आता है, एक clavicle आता है. Scapula जो होती है, it's the triangular flat bone present between the second and the seventh rib. Scapula के ऊपर एक रिज होता है जिसको हम एक्रोमियन कहते हैं, which articulates the clavicle. Acromion के नीचे एक cavity होती है, that's called as a glenoid cavity, which articulates with the head of the humerus to form the shoulder joint. Each clavicle has two articulation surfaces, and it's also called as the collarbone. Scapula is a triangular bone. Scapula is present in the second and seventh rib. इसके पास जो एक रिज होता है जिसको एक्रोमियन के साथ आर्टिकुलेट करती है क्लेविकल. एक्रोमियन के नीचे एक कैविटी होती है, दैट्स कॉल्ड एज अ ग्लूनाइड कैविटी, जो आर्टिकुलेट करती है विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस, दैट्स कॉल्ड दैट फॉर्म द शोल्डर जॉइंट. Completes. Pelvic girdle consists of two coxal bones. Each coxal bone is formed by the fusion of three bones: ilium, ischium, pubis. टू कॉक्शल बोन्स. पेल्विक गर्डल के पास होती है दो कॉक्शल बोन्स. हर कोई कॉक्शल बोन बनती है तीन बोन से, इलियम, इश्चियम, प्यूबिस, जिनके द पॉइंट जहाँ पे फ्यूजन होती है, द पॉइंट ऑफ देयर फ्यूजन वहाँ पे होती है एक कैविटी जिसको हम एस्टेब्यूलम कहते हैं. जो आर्टिकुलेट करती है विद द thigh bone. The two halves of the pelvic girdle meet ventrally to form the pubic symphysis containing the fibrous cartilage. The two halves जो pelvic girdle के जो दो halves होते हैं वो ventrally मिलते हैं. Very important. Meet ventrally to form a pubic symphysis. उसको हम फिर collectively बोलते हैं pubic symphysis. उस pubic symphysis में कौन सा cartilage present होता है? Fibrous cartilage. Very important. Fibrous cartilage कहाँ पे present होता है? दो halves जो pelvic girdle के होते हैं वो कहाँ से meet होते हैं और वो क्या बनाते हैं? The two halves of the pelvic girdle meet ventrally and form the pubic symphysis, which contains the fibrous cartilage. Very important. Pelvic girdle में कितने होते हैं? दो कॉक्शल बोन्स. हर कोई कॉक्शल बोन में कितने बोन्स होते हैं? छोटे तीन बोन्स, इलियम, इश्चियम, प्यूबिस. और जहाँ पे वो फ्यूज होते हैं वहाँ पे एक कैविटी होती है, फ्यूजन पॉइंट्स पे कैविटी होती है जिसको हम एस्टेब्यूलम कहते हैं. एस्टेब्यूलम जो आर्टिकुलेट करते हैं विद द थाई बोन. एस्टेब्यूलम की जैसा ही होता है पेक्टोरल girdle में कौन? ग्लिनॉइड कैविटी, जो आर्टिकुलेट करती है विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस. The two halves of the pelvic girdle meet ventrally to form the pubic symphysis. और वो उसमें होता है प्रेजेंट कौन सा? फाइब्रस कार्टिलेज. स्कैपुला होता है SSS. स्कैपुला इज प्रेजेंट बिटवीन द सेकंड एंड द सेवंथ रिब. SSS बीच में स्कैपुला, ऊपर सेकंड, नीचे सेवंथ. Scapula is a large triangular flat bone situated between the dorsal part of the thorax between the second and the seventh. Dorsal part में present होता है. हाँ, dorsal part में, thorax के dorsal part में present होता है. The dorsal flat triangular part is slightly irritated, called as acromion. Acromion articulates with this. The clavicle articulates with this. Below the acromion is a depression called as a glenoid cavity, which articulates the head of the humerus for shoulder. Each clavicle is long into two curvatures, commonly called as collarbone. Pelvic girdle consists of the two coxal bones formed by three bones: ilium, ischium, and pubis. At the point of the fusion of the bones is called as acetabular which articulates with the thigh bone. The two halves of the pelvic girdle different colors से highlight करना पड़ेगा. The two halves of the pelvic girdle meet ventrally. The two halves of the pelvic girdle meet ventrally to form the pubic symphysis containing the fibrous cartilage.
अराउंड 10 मिनट्स में हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट बहुत अच्छे से कंप्लीट किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें पढ़ना है थोड़ा सा किसके बारे में, जॉइंट्स के बारे में। है लास्ट टॉपिक, सब टॉपिक कहेंगे, टॉपिक कहेंगे जॉइंट। जॉइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग द बॉडी पार्ट्स ऑफ बॉडी। जहाँ भी मूवमेंट होगी, लगभग हमारी बॉडी पार्ट्स भी जहाँ भी मूवमेंट होती है ना, मेनली जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट तो होता ही होता है। जॉइंट्स इन्वॉल्विंग द बॉडी पार्ट्स, लोकोमोटर मूवमेंट्स, लोकोमोशन वो मूवमेंट्स जहाँ पे लोकोमोशन में जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। हर किसी लोकोमोशन मूवमेंट में जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। देयर आर नो एक्सेप्शंस टू लोकोमोटर मूवमेंट्स, जॉइंट्स आर नो एक्सेप्शंस लोकोमोटर। यहाँ पे लिखा एक पॉइंट है, लोकोमोटरी मूवमेंट्स आर नो एक्सेप्शन टू जॉइंट्स, मतलब हर किसी लोकोमोटरी मूवमेंट में जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन से क्वेश्चन निकलता है, हर एक लाइन से लिटरली। जॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ द कंटेक्ट बिटवीन द बोन्स और बिटवीन द बोन्स एंड द कार्टिलेज। या तो बोन या बोन के दरमियान पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, या बोन या कार्टिलेज के दरमियान पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, जॉइंट्स, उनको जॉइंट्स कहते हैं। बोन एंड बोन, बोन या कार्टिलेज जॉइंट हमें डायग्रामेटिकली दिखाया गया है ताकि रिमेंबर है। बोन बोन कार्टिलेज, बोन कार्टिलेज। फोर्सेस जनरेटेड बाय द मसल जॉइंट एक्ट एज अ फलक्रम। फलक्रम हमारी जो काम को आसान करता है, जॉइंट एक्ट्स एज अ फलक्रम, जॉइंट एक्ट एज अ फलक्रम। जब किसी वेट को उठाते हैं उसके नीचे हम कुछ रखते हैं विच एक्ट्स एज अ फलक्रम, इसी तरह जॉइंट एक्ट एज अ फलक्रम। The movability of these joints vary depending on the different factors. Joints have been classified into three major structural forms, namely on the major structural forms like fibrous joint, cartilaginous joint. Three types of joints: cartilaginous joint, fibrous joint, cartilaginous joint. fibrous joint तो अभी पढ़ा हमने pubic symphysis में, फाइब्रस जॉइंट। दूसरा है कार्टिलेजनस जॉइंट, पता ही है कार्टिलेजनस जॉइंट कहाँ पे होगा, वर्टेब्रल कॉलम में होता है। वर्टेब्रे जो 26 अभी अभी पढ़ के आए हैं, 26 वर्टेब्रे के दरमियान होते हैं छोटे छोटे कार्टिलेज, उनको कार्टिलेजनस जॉइंट कहते हैं। एंड द साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट खूब खुल के मूवमेंट करेगा साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रो जॉइंट कुछ नहीं करने देगा, फाइब्रो जॉइंट कुछ नहीं करने देता है, कुछ नहीं, कोई मूवमेंट नहीं करने देता है। कार्टिलेजनस जॉइंट थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट करता है, लेकिन जो साइनोवियल जॉइंट होता है वो बोलते हैं खुल के जियो अपनी ज़िंदगी, खुल के मूवमेंट करो, साइनोवियल जॉइंट। आप देखेंगे फाइब्रस जॉइंट तो आपको समझ आया, फाइब्रस जॉइंट मतलब मूवमेंट दिखाती है, हिल नहीं, फाइब्रस जॉइंट हिल नहीं दिमाग। साइनोवियल जॉइंट बोलता है खुल के मूवमेंट करो, और कार्टिलेजनस जॉइंट शोज रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, कम मूवमेंट। Fibrous joint do not allow any movement. पहले ही बोला, this type of joint is found in the flat skull bones which used to enter with the help of the dense fibrous connective tissue in the form of sutures to form the cranium. skull में present होता है fibrous joint, जो sutures होते हैं, bones होते हैं, frontal bone, parietal bone, temporal bone, occipital bone, वहाँ उन bones के जो fusion points होते हैं वहाँ पे fibrous joint present होता है। ये कोई movement नहीं करने देता है fibrous joint, it does not allow any movement. Second one is cartilaginous joint allow restricted movement. Therefore, the cartilaginous joint allows limited movements, limited movements. Synovial joint created by the presence of the fluid synovial cavity. Fluid भूल गए थे, fluid synovial joint में present होता है एक fluid cavity that's called as a synovial fluid होता है उस cavity में. It allows considerable movement. These joints help in the locomotion and many other movements. Ball and socket joint present between the head of the humerus and head between the humerus and the pectoral girdle. जो अमी pectoral girdle की कौन से पार्ट के साथ बनाता है, शोल्डर जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है ना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है ग्लिनॉइड कैविटी, यस, ग्लिनॉइड कैविटी आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द ह्यूमरस टू फॉर्म द शोल्डर जॉइंट, जिसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। सेकंड पाइवट जॉइंट होता है प्रेजेंट एटलस में, पाइवट जॉइंट होता है एटलस में, यस, ऐसे ही रैंडमली याद रखें। पाइवट जॉइंट बिटवीन द एटलस एंड द एक्सिस। हिंज जॉइंट होता है प्रेजेंट नी में, हिंज जॉइंट यहाँ पे नी में प्रेजेंट, नी में हिंज जॉइंट नी में प्रेजेंट होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट होता है बिटवीन द कार्पल्स, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है बिटवीन द कार्पल्स के दरमियान होता है ग्लाइडिंग जॉइंट। एंड द सैडल जॉइंट बिटवीन द कार्पल एंड द मेटाकार्पल ऑफ थंब, बहुत बार आया है सैडल जॉइंट बिटवीन द कार्पल एंड द मेटाकार्पल ऑफ थंब, बिटवीन द कार्पल्स के दरमियान होता है। कार्पल्स के दरमियान कौन सा ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, कार्पल्स के दरमियान, लेकिन कार्पल एंड द मेटाकार्पल ऑफ थंब के दरमियान होता है सैडल जॉइंट। हिंज जॉइंट होता है प्रेजेंट नी में, पाइवट जॉइंट होता है प्रेजेंट एटलस एंड द एक्सिस में, इसी तरह होता है सैडल जॉइंट। इसके बाद क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है ह्यूमरस एंड द पेक्टोरल गिर्डल, ह्यूमरस एंड द पेक्टोरल गिर्डल, ह्यूमरस। टोटल 3 जॉइंट्स पढ़े हमने। फाइब्रस जॉइंट होता है प्रेजेंट स्कल में और पुबिक सिम्फाइसिस में, वो वहाँ लिखा है। कार्टिलेजनस जॉइंट होते हैं प्रेजेंट बिटवीन द वर्टेब्रे, लिमिटेड मूवमेंट्स, लेकिन साइनोवियल जॉइंट होते हैं, साइनोवियल फ्लूइड स्पेस होते हैं साइनोवियल जॉइंट में, जो कंसिडरेबल मूवमेंट दिखाते हैं साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। हमारे लोकोमोटर मूवमेंट्स में साइनोवियल जॉइंट का ही रोल होता है। फॉर एग्जांपल साइनोवियल जॉइंट, हिंज जॉइंट
होता है नी में, पाइवट जॉइंट होता है बिटवीन द एक्सिस एंड द एटलस एंड द एक्सिस, दैट इज द फर्स्ट वर्टेब्रा एंड द एक्सिस। इसी तरह होता है सैडल जॉइंट बिटवीन द कार्प एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, कार्पल्स के दरमियान इटसेल्फ होता है प्रेजेंट अ ग्लाइडिंग जॉइंट। डिसऑर्डर्स ऑफ द मस्कुलर एंड द स्केलेटल सिस्टम, इसमें से क्वेश्चन आया था नीट 2021 में, इस पोर्शन में से डिसऑर्डर्स में से ज़्यादा क्वेश्चन मतलब प्रेफरेबली इसी में डालता है, मतलब जिनका ना एप्लीकेशन होता है डिसऑर्डर्स। मायस्थीनिया ग्रेविस, इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटिग, weakening and the paralysis of the skeletal muscle. Myasthenia gravis, it is an autoimmune disorder involving affecting the neuromuscular junction leading to fatigue, weakening and the paralysis of the skeletal muscle. Fatigue, weakening and the paralysis of the skeletal muscle. Autoimmune disorder affecting the neuromuscular junction leading to fatigue, weakening and the paralysis of the skeletal muscle. Second one is muscular dystrophy, it is a genetic disorder, ये हमें genetics में पढ़ा है 12th में। muscular dystrophy, it is a genetic disorder, it is a autosomal dominant disorder, शायद autosomal dominant है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन, मसल्स डिजेनरेट हो जाती हैं। डिस्ट्रॉफी, इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर, मसल टेटनी को रैपिड स्पाज्म, दैट इज वाइल्ड कंट्रैक्शन इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम आयन इन द बॉडी फ्लूइड, लो कैल्शियम आयन इन द बॉडी फ्लूइड, याद रखना है बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम कम है, लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड टेटनी। आर्थराइटिस को कहते हैं हम रिहार, आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स। इसी तरह ऑस्टियोपोरोसिस, एज रिलेटेड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज्ड चांस ऑफ फ्रैक्चर, डिक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज अ कॉमन कॉज। ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा पाए जाते हैं इन द फीमेल्स में, क्योंकि इसका मेन कॉज होता है डिक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। ऑस्टियोपोरोसिस इज अ एज रिलेटेड। गाउट को इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, गाउट भी होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। आर्थराइटिस भी होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। आर्थराइटिस इज एक्चुअली ऑटो इम्यून, गाउट होता है ड्यू टू the inflammation of due to the accumulation of uric acid crystals, due to the accumulation of uric acid crystals, accumulation of myasthenia gravis, it is an autoimmune disorder affecting the neuromuscular junction leading to the fatigue, weakening, and the second one is autoimmune disorder कौन होता है myasthenia gravis is an autoimmune disorder involving the autoimmune disorder affecting the neuromuscular junction leading to fatigue, weakening and the paralysis of the skeletal muscle। इसी तरह इसमें सेकंड वन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें डिजेनरेशन ऑफ मसल फाइबर होता है, एंड skeletal muscle होता है मोस्टली ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। टेटनी होता है रैपिड स्पाज्म और वाइल्ड कंटेंट ड्यू टू द लोड कैल्शियम आयन्स इन द बॉडी फ्लूइड्स। आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। ऑस्टियोपोरोसिस, एज रिलेटेड डिसऑर्डर, इट ऑकर्स डिक्रीज्ड बोन मास, increased chances of fractures occurs due to the low estrogen levels, and the last one is gout, inflammation of the joints due to the accumulation of the uric acid crystals, inflammation of joints due to the accumulation of the uric acid crystals। पढ़ाई के बाद हाइड्रेटेड, पढ़ाई के दौरान हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है। इन सारे मसल्स बोन्स के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है, जो अभी हम पढ़ रहे थे इतना सारा। लाइव सेशन के दौरान क्वेश्चंस का जवाब कैसे दें? बायोफिजिक्स के नया करो Ncert प्लस कॉन्सेप्ट्स। अभी कौन है लाइव में? अभी हमने जस्ट एक चैप्टर कंप्लीट किया है आज, था टारगेट लोकोमोशन मूवमेंट, वो अल्हम्दुलिल्लाह सारा कंप्लीट हो चुका है। द नेक्स्ट टारगेट हमारा टुमारो होगा अराउंड 10:30 PM स्टार्ट होगा। अराउंड 1 आवर 30 मिनट्स में हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। डेली हम एक चैप्टर कंप्लीट करवाते हैं, 10:30 पे स्टार्ट होता है। तो कल का टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर कौन है? न्यूरल कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कोऑर्डिनेशन है हमारा कल का टारगेट एट शार्प 10:30 PM।
कल 10:30 PM पे फिर से लाइव सेशन होगा ऑफ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोशिश करेंगे चैप्टर को कंप्लीट करने की। आज हुआ कंप्लीट, कल भी हुआ था कंप्लीट हमारा। कल जो कौन सा वाला था हमारा कल का, जब हमारा कल था एक्सक्रीशन, हाँ एक्सक्रीशन हमारा कल हुआ था कंप्लीट। आज हमने किया एक और चैप्टर कंप्लीट अपने लाइव सेशन में। रिवीजन कर रहा हूँ मैं एक्चुअली बायोलॉजी का। सो मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी सेशन में टुमारो शार्प 10:30 PM। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस क्या बोलूँ मैं अभी, हैव नाइस ड्रीम्स, अच्छे अच्छे ख्वाब आए आपके, आपकी हर मुराद पूरी हो।